أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انتہائی محترم قرآن دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 14A میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورت العصر پڑھیں گے۔ یہ بہت چھوٹی سی سورت ہے لیکن جامعہ بہت زیادہ وہ ہے اس کے اندر۔ تو اس میں 4 خصوصیات کا ذکر ہوگا، تو جب آئیں گے انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں، یعنی کہ اس میں عقیدہ ہے، اعمال صالح ہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے۔ تو یہ ہے تو بہت چھوٹی، لیکن اس کی افادیت کو آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے تو پھر اس کو آسان ہو جائے گا۔ جی یقیناً آپ لوگ گوگل کوئز کر رہے ہوں گے، اگر نہیں کر رہے تو ساتھ ساتھ کر لیں۔ اپنی ورک بک پہ بھی خصوصی توجہ دیں۔ اب ہمارے تھوڑے سے لیسن رہ گئے، پھر ہم اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے گوگل ہوم ورکس اور ورک بک پہ خصوصی توجہ دیں۔ جی فی السماوات ذرا کوئکلی آپ لوگوں نے لکھنا تاکہ تھوڑی سی آپ کو ریویژن ہو جائے کہ سوالات آتے ہیں تو پھر ہمیں۔ جی ہمارے ساتھ نہیں سسٹر نائمہ خان، وہ کہہ رہی ہے میری آواز نہیں آ رہی، بتائیں گے میری آواز صاف ہے یا نہیں ہے؟ سر جی اب کلیئر السلام آواز علیکم آ رہی ہے سر، آپ کی؟ بالکل کلیئر ہے جی۔ بٹ ہلکی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے مگر ہلکی ہے۔ اچھا، تو آپ اپنے مائک کو نو اس سر کو اسپیکر کلیئر کو ہے، زیادہ کر بہت لیجیے، تیز ہے۔ اسپیکر کو زیادہ کر لیں سسٹر نائمہ، اپنے اسپیکر سے اس کی آواز کو زیادہ کر لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچا دو میری طرف سے، اگر چاہیے ایک پارہ ہی کیوں نہ، سورہ کیوں نہ ہو، آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی، ایک آیت ہی کیوں نہ، بالکل ماشاءاللہ۔ سسٹر نسرین، سسٹر بیہا، سویبہ، نیلا، ماشاءاللہ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کریں۔ مالک ناس، لوگوں کا بادشاہ جی۔ جی آج کا سبق، چلے ذرا چیٹ باکس میں رکیے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورۃ العصر۔ گرامر کے اندر آج ہم انشاءاللہ جو ہم فعل مضارع ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کو کمپلیٹ کر لیں گے، اور اسی طرح ایک ماضی جو ہے نا اس کو سیکھیں گے۔ نکات تعلیم و شوق بڑا زبردست ہے۔ 18 نئے الفاظ آج ہم سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 4445 بار ہے، 4444 ٹائم آئے ہوئے ہیں۔ جی آج کے لیسن نمبر 14 کے اختتام پر 174 174 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک کے اندر 36,556 بار ہیں۔ دیکھیں ہماری بیٹری بالکل جہاں پہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ اس کے قریب قریب پہنچتی جا رہی ہے۔ تو اس شوق اور جذبے کے ساتھ اس کو آپ کریں، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، جو سورۃ اثر ہے اس کو پہلے سن لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وَإِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جی یہ ہے جی ایک مختصر لیکن جامع سورہ ہے۔ اس میں کیا ہے جی، انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری کے لیے، ٹھیک ہے، اور نفس کے تزکیے کے لیے، یعنی کہ ایک کیا جی عقیدہ، دوسرا کیا جی اعمال صالح، اور جو باقی 2 معاشرے کی ہیں اس میں ایک دوسرے کو ہم نے، معاشرے میں بھی ہم نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنی ہے اور ہم نے صبر کی بھی نصیحت کرنی ہے ایک دوسرے کو ہم نے۔ جی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ جی پہلے تو مجھے اس کے ٹکڑے بتا دیں، کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟
3 ٹکڑے ہیں. جی کون کون سے تین ہیں؟ وا، ال اور عصر. اچھا ماشاء اللہ جی، ٹھیک ہو گیا. کوئی اور بتائے گا جی؟ دو ٹکڑے ہیں. دو ٹکڑے ہیں. اچھا چلیں اب مجھے بتائیں، دو واؤ ٹکڑے. دو. اگر دو ٹکڑے ہیں، واؤ اور العصر، یہ دو ٹکڑے ہیں. واؤ اس میں کیا ہوگا؟ ویسے کیا ہوتا ہے واؤ اگر ہم بات کرتے ہیں تو؟ اور اور ہوتا ہے حرف. سر. واو تو اور ہوتا ہے، لیکن ایسے اس کے لیے قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے واو. حرف ہے اچھا سر اس میں نا، حرف عطف وہ نہیں آئے گا اس میں. ٹھیک ہے، حرف ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کیوں؟ پہلے ہم نے کیا پڑھا اور کا مطلب واؤ کا مطلب؟ اور سر. اور اور. اچھا قسم والے کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ واؤ کا مطلب قسم بھی آ رہا ہے کسی کو آئیڈیا؟ سر واللہ ہو جب ہم بولتے ہیں تو اللہ کی قسم اگر ہم اس سے لیں تو. نہیں دیکھیں، واؤ تو پھر کسی اور جگہ بھی آ رہا ہوگا. اچھا واؤ چلیں کے تھوڑا سا ساتھ مجھے لام بھی ہے اب اس کی اس لیے. بات پر زمانے کی گواہی دی جائے گی. اچھا ٹھیک ہو گیا. العصر جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فعل ہے میں سے اگر میں بات کروں، اسم ہے اسم ہے فعل سر. ہے؟ ال لگ گیا تو اسم ہو گیا سر. ماشاء اسم. اللہ. اب دو ٹکڑے اس جو سسٹر تین بنا رہی تھے نا، تو ال اسم کی وجہ سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی، واؤ قسم کے لیے کیسے ہوگا؟ اب اسم آ گیا نا، اسم. ایک تو یہ ہوگی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسم ہوگا قسم کے لیے. دوسرا کیا، اسم کے نیچے یہاں پہ کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. ٹھیک ہے. واؤ قسم ہے، العصر زمانے کی. اب یہ دیکھیں کئی صورتیں آپ کو اس میں سے ملیں گی جو واؤ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں. اب واؤ کے ساتھ اس نے کیا کہا جی؟ ال لگا ہوا ہے نا تقریباً سب میں. اور یہ ریڈ کیا گیا، دیکھیں اس کے نیچے کیا آ رہا ہے؟ یہ زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا غور آپ نے کرنا ہے. والفجری واللیلی سر جی والنجمی. جو زیر انڈ پہ آ رہی ہے وہ کیا ہمیں بتا رہی ہے؟ وہ قسم کے لیے آ رہی نا واؤ. میں نے پوچھا تھا کہ واؤ قسم کے لیے کیسے آئے گا، تو دیکھیں یہاں پہ بھی ریڈ ہے. یہ واؤ کو ہم نے سارا کو ریڈ کیا ہوا. یہ جو اسم ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی. یہ آخری والا، یہ والا، یہ والا. تو وہ کیا جزاک ہوگا؟ اللہ. قسم. قسم کے لیے استعمال ہو رہا ہوگا واؤ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا جی؟ یہ آپ کے ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں ساری. جی اثر کیا جی؟ اردو کی مثال عصر حاضر سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. اثر کیا جی؟ زمان. اسباق دیکھتے ہیں، زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے. اس بات پہ جو اس سے آگے کہی جائے گی، اس کے بعد جو بات کہی جائے گی اس کی قسم آ رہی ہے نا. زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے. سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن ہے، جس میں کیا جی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. زمانہ کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے. تاریخ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ٹائم گزرا سارے کو ہم یہ تاریخ ہے. تو آگے اب بات کیا ہو رہی ہے؟ ان الانسان. انا کا مطلب کیا ہے جی؟ بے شک. بے شک. بے شک. کس سے یاد رکھا ہوا ہے آپ نے؟ ان اللہ مع الصابرین. ماشاء اللہ جی. الانسان اسم فعل امر میں سے کیا ہے؟ یہ اسم. اسم ہے سر. اسم ہے سر. خاص اسم. خاص اسم. خاص اسم ہے، خاص انسان کی بات ہو رہی ہے. جی اس کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ ایک ہی. ایک ہی ہے یہ؟ لا فی کے دو ہیں، دو ہے. لا اور ایک فی. ہے لا اور ایک فی. خسرین فی اسم فعل امر میں سے کیا ہے؟ یہ اسم ہے سر، سر اسم ہے. تنوین کی وجہ سے. ماشاء اللہ اسم ہے.
इंशाल्लाह थोड़े दिनों बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि इसम कैसे है। इंशाल्लाह अब आगे आगे आहिस्ता आहिस्ता अब समझ आना शुरू होगी है। अब हम देखते हैं जी, इन अल्लाह मास साबिरीन। ब्रदर ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, इससे हमने इसको याद रखा हुआ, बेशक अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। तो इन्ना याद रखे, ये इन्ना जो है 1534 बार कुरान पाक में आया हुआ है। अच्छा, एक इन्ना बेशक है, एक और इन ये क्या जी, अगर है। ठीक है, एक का मतलब क्या जी, अगर, और एक का मतलब क्या जी, बेशक। जी, इंसान, इंसान आदमी, खा, वो खास इंसान यानी बनी नूह इंसान, बनी नूह इंसान। जी, ला और फी, ला का मतलब अलबत्ता, फी का मतलब में। जी, हमने क्या मतलब पढ़ा हुआ है ला या ली का? ला ला का लिए मतलब नहीं सर। और फी ला में। मतलब नहीं। ला का मतलब नहीं भी पढ़ा है? जी सर। वो कहाँ पे पढ़ा है मेरी बहन? वो ये वाला ला है, अलिफ के साथ है। तो लाम अलिफ, लाम लाम अलिफ अलिफ ला। ला वाला ना। जी सर, लाम अलिफ ला वाला। ठीक है, उसका मतलब नहीं है। ये वाली खाली ला जो है, इसका मतलब अलबत्ता आ रहा है। एक हमने पढ़ा है ला और ली, लिए के लिए। ठीक हो गया जी। चलें, अब हम ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। ला अगर किसके साथ आएगा? वलाकद यस्सरनल कुरान, तो इसका मतलब क्या होगा? इंडीड, अलबत्ता। क्या होगा? इंडीड, अलबत्ता, यानी कि तहकीक। उस पर थोड़ा सा जोर दिया जाएगा, हमने आसान किया कुरान को। जी, जो ला या ली है ना, इसकी कुरान पाक के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं। इसको कोशिश करें आप इसका स्क्रीन शॉट लेकर रख लें। ला या ली अगर किसी इसम के साथ आएगा, जैसे हमने टेबल किया था, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना और लहा, ये सारे क्या है? इसम है। तो उसका मतलब होगा लिए। क्या मतलब होगा उसका? लिए। जैसे हम कहते हैं लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह के लिए। ये लाहू हमने पढ़ा उसके लिए। ठीक हो गया जी। अगर ये फेल के साथ आएगा, ली अगर फेल के साथ आएगा, तो इसका मतलब होगा ताके, ताके, ली या तदब्बारू, ताकि वो गौर करें। ली या तजक्कारू, ये भी इंशाल्लाह आज आ जाएंगी, या आगे हम पढ़ेंगे। ली या तजक्कारू, उसका मतलब ताकि किसके साथ आए? ये फेल के साथ। ला या ली अगर हरूफ के साथ आ जाए, हर्फ के साथ आ जाए, प्रेपोजिशन के साथ आ जाए, जैसे लकद या लाफी, तो इसका मतलब वो क्या होगा? अलबत्ता, तहकीक, ताकीद के लिए होगा, जोर देने के लिए होगा। बस ये आपने इस चीज को याद रखना है, ये बार बार आएगा। तो आपने कोशिश करना है कि इसको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखें, या इसका स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास महफूज कर लें, या इसको नोट कर लें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है जी इसकी। ठीक है, ली इसम के साथ लिए, ली फेल के साथ ताके, ला या ली हरफ के साथ तो अलबत्ता, तहकीक, ताकीद के लिए, जोर देने के लिए होगा। लाफी हो गया, जागे आगे जी, खुसरिन, फी खुसरिन, फी का मतलब में, खुसर क्या जी? घाटा, घाटा। घाटा वैसे क्या होता है? हम अक्सर कहते हैं ना, फलां को, बंदे को घाटा पड़ गया। वो फलां काम कर रहा है, नुकसान। उसको घाटा नुकसान पड़ गया। सर। सर अच्छा, कमी ठीक है, बेशी जैसे हो जो। ठीक है। नुकसान, कैसा नुकसान होता है वो? मसलन वो बंदा 100 रुपए की चीज लेके आता है, या वो 1 लाख रुपया लगा रहा होता है बिजनेस में। तो नुकसान उसको किस तरीके से आप कहेंगे कि नुकसान हो गया? सर उसमें उसको 80,000 अगर बचता है 1 लाख में से चीज बेचकर, तो उसका नुकसान हुआ ना। ठीक है, अगर 95,000 बच जाए तो फिर? तब भी फाइव नुकसान ही परसेंट है सर। 5% नुकसान हुआ। फिर भी नुकसान है। अगर 99,000 हो तो? तब भी वन सर परसेंट नुकसान ही। नुकसान हुआ। अच्छा, चलें, नुकसान, आप लोग इसको नुकसान कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इस सूरा के अंदर नुकसान की बात बयान की जा रही है,
देखिए اس میں کچھ نہ کچھ تو اس کو بچ رہا ہے نا، مطلب 1,000 2,000 10,000 20,000 50,000 50% بھی نقصان ہو جائے، اس کے اندر جو نقصان یہ خسارے کی بات ہو رہی ہے، یہ خسر کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، یعنی کہ اگر آپ نے 1,00,000 10,00,000 لگایا وہ سارے کا سارا ضائع ہو جائے، یہاں پہ اس خسارے کی بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس خسارے سے بچنا ہے۔ بچنے کا فارمولا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اس کے اندر کیا کہتے ہیں سورہ کے اندر بتایا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ وہ خسارہ کیسا ہے؟ ایسا خسارہ کہ جس کے اندر اصل جو لگائی ہے، جو اس میں لگایا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سرمایہ لگایا، وہ بھی ضائع ہو جائے۔ جی اب اس میں ذرا غور کیجئے گا، 4 بار تاکید کریں اللہ تعالیٰ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، پہلی کیا جی؟ قسم، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، پہلی بات قسم، دوسری بات بے شک، تیسری البتہ، اور یہ بیان کہ اکثریت کی اکثریت کیا جی؟ خسارے میں ہے، ہم سب لوگ خسارے میں ہیں۔ خسارہ کون سا؟ جس کے اندر ٹوٹلی ہر چیز فنش۔ تو یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے، تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی۔ تو کیا جی؟ مجھے آپ سب کو فوری دعا کرنا چاہیے، اے اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ تو اس کی ہم پریکٹس کریں گے، دعا، تصور، دعا احساس کے ساتھ۔ جی بیٹا بیہا اسلم پڑھیں گی، والعصر، والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسرن البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی بردر عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، انا بے شک، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہینڈ ریز کریں گے، خالی انمیوٹ کرنے سے نہیں پتہ چلتا۔ جی سسٹر سوائبہ مشتاق۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ جی نویدہ اختر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ جزاک اللہ۔ باقی لوگوں سے آگے کرواتے ہیں جی، بس انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ کتنے جی 9 لوگوں کے ہینڈ ریز ہیں، الحمدللہ۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، الحمدللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، جب خسارے سے بچنے کا آگے فارمولا بھی بتائیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو ہم نے زندگی میں لے کرنا ہے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ سے مثال، مسلسل دعا کیجئے اور اللہ ان چاروں کام کرنے کی توفیق دے۔ احتساب ہم نے کرنا ہے گزرے زمانے کا، اور پلان انشاءاللہ مستقبل۔ خسر کیا ہے جی؟ خسارہ، نقصان۔ سورہ اثر میں کتنی بار تاکید ہے جی؟ یہ ذرا لازمی چیٹ باکس میں لکھیے گا۔ جی ابھی ہاں نائمہ 4 کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈی آر 4 ٹھیک ہے۔ صاحبہ فاطمہ ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ کا ہم نے پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ میں، جی کیا مطلب ہے اس کا؟ سوائے، ٹھیک ہے؟ سوائے بھی ہوتا ہے، مگر بھی ہوتا ہے۔ کہاں پہ پڑھا تھا ہم نے؟ لا الہ الا اللہ میں نے پوچھنا تھا، میں نے کہا چلیں۔ اللہ زینہ، اس کو ہم نے کہاں پہ پڑھا ہے اور اس کا کیا میننگز ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ الفاتحہ۔ سورہ، بالکل ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے۔ اس کا یہ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے سر جی۔ جمع سر، جمع ہے۔ جمع ہے، الذی سے الذین۔ بالکل جی۔ اللہ زی اس کا کیا ہے جی؟ واحد ہے، اور اسی طرح اللہ تی اس کا مؤنث ہے، اس کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ صراط العظیمہ ہم نے پڑھا ہے۔ آمنو، یہ آگے کا لیول ہے جی، ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ اس کو فی الحال ایمان سے آپ یاد رکھ لیں، ایمان لائے، ایمان مومن وغیرہ سے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔
ठीक है जी। आगे आ रहे जी वअमिलू, और अमल किए। हमने अमिला का टेबल किया हुआ है, सर किया जी, हुआ है। फेल अमिला, मादी अमिला जमा की, हाँ जी, ये फेल माजी है और उसकी जमा है। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना। जी, ठीक हो गया जी। कौन सा अमल अल्लाह को कबूल है? यकीनन नेक या बुरा? तो सालिहात क्या है जी आगे, मतलब नेक। जी, कोई थोड़ा सा ये बताएगा ये क्या है जी, इसम फेल अरब में से अगर मैं इसकी बात करूं तो? इसम इसम है है सर जी, खास है। इसम जमा और जमा है और कम सर मोनस है। मोनस है सर, बिल्कुल, मोनस माशाल्लाह जी। जमा। ये अगर, बिल्कुल, अगर इतनी आपको पहचान हो जाए ना। चलें जी, पहली बात हमने कर ली जी इसम है। अब इसम की क्वालिटीज क्या है जी, वो खास है या आम है? वो वाहिद है, ये जमा है, तो ये जमा है, तो ये मुन्नस है, जमा मुजक्कर है है, सर। मुन्नस। इसम मुजक्कर भी हो सकता है, मुन्नस भी हो सकता है, इसम वाहिद भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है, इसम खास भी हो सकता है और आम भी हो सकता है। इनके मार्फ और नकरा। माशाल्लाह जी। ये इसको सालेहात जो है ना, ये जो लिखा हुआ है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसमें खड़ी जबर आ रही है तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ये वाला। ठीक हो गया जी। सालेहुन, सालेहून, सालेहन, या सालेहिन से क्या बनेगा, सालेहीन। ये सालेहात बोलता है तो सालेहात। ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे ए अल्लाह हमें अमले साले नसीब फरमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज पढ़ना वगैरह सारा, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना। फिर हम आगे प्लान बनाएंगे, हर अमल में कुछ प्लान में बनाएंगे। जी, तसव्वुर सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इल्ला सवाए अल्लाह जीना, उनके जो आमिनो ईमान लाए, व आमिलो और अमल किए सालिहात नेक। अब जो पीछे बात हुई है ना, जो पिछली आयत मुबारका में बात आ चुकी है, अब वहां से अल्लाह क्या कह रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। वो खसारे में तो सारे हैं, लेकिन बट, मगर, या सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए कौन सा, नेक, वो उनको खसारा नहीं होगा। जी सिस्टर नाइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इल्ला सिवाय अल्लज़ीना, उनके जो आमनू ईमान लाए, व अमिलू और अमल किए, अस्सॉलिहात नेक। जी ब्रदर ताहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम इल्ला सलाम। सवाए अल्लज़ीना, उनके जो आमनू ईमान लाए, व आमिलू और अमल किए, अस्सालिहात नेक। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर इरम, इरम फातिमा, अनम्यूट करें। नहीं जी। सिस्टर अस्मा इजाज, सिस्टर अस्मा। इल्ला सोए अल्लाह जीना, उनके जो आमन ईमान लाए व आमिल सालिहाती और अमल किए नेक। चलें, जज़ाकल्लाह जी। बाकी आप लोगों को आगे कराते हैं, थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप पार्टिसिपेट करें आप लोग, ताकि थोड़ी सी असेसमेंट यहाँ से भी हो सकती है आपकी। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे या टाइम कमी की वजह से हम नहीं कर सकते, तो ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। जी, बिल्कुल ठीक है जी। आमनू का तर्जुमा क्या होगा? आमना, अमानू, ये इंशाल्लाह आगे जाके फेल करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। और सब मान लाए। सॉलेह, जी इसकी क्या जमा होगी? सवाल चेंज हो चुका है। जी सिस्टर माशाल्लाह नाइमा खान ने जवाब दिया जी, ये बिल्कुल ठीक है। स्वैबा, सिस्टर नवीदा, जज़ाकल्लाह ब्रदर ताहिर, सिस्टर अबीहा शदाब, ठीक है जी। जी, निजात के लिए क्या करना जरूरी है? ईमान, एक दूसरे की वसीयत, दावत और एक दूसरे को हक पे सब। अच्छा जी, बिल्कुल यही जवाब है। जी, हक को बेहतर बनाने के लिए क्या एक्सरसाइज जवाब हो सकते हैं, इसका भी बिल्कुल ठीक है। ऑल है जी। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं, जरा चैट बॉक्स में के वतवासो, एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक, हक की। अच्छा, वतवासो ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा नजर आ रहा है। वतवासो, बहरहाल ये फेल काफी आगे का है, इसको हम देख लेते हैं। दरासा से, ठीक है, एक वर्ड होता है दरासा, पढ़ा, दर्रासा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया। ठीक है, तो तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, तो इसी तरीके से होगा तदारसू या तवासौ। उन सब ने एक दूसरे को क्या की, वसीयत की, एक दूसरे को वसीयत की। ठीक है जी।
वतवासो, एक दूसरे को वसीयत की। किसकी? हक। हक क्या है? हक कहाँ से मिलता है? कुरान और सुन्नत से। कुरान में सारी तफसील के अंबिया अलैहिस्सलाम ने किस तरह तवासु बिल हक और तवासु बिस सब्र किया। गोया ट्रेनिंग है इस काम की। कुरान ही समझ में ना आए तो कैसे ज़हन में बैठेगा, और दूसरों को क्या बताएंगे? जी क्या बताएंगे? बेसब्र, सब्र की। ठीक है जी। इसके कितने टुकड़े होंगे? तो दो सर। ये देखें, बी क्या और अल असर। चलें जी, अब अल असर के बारे में बता दें मुझे। इसम फेल अरब में से क्या है? इसम खास समय इसम। इस समय साजी इसमें खास इसमें खास। चलें, जजाकल्ला जी। सबर, साबित कदमी, मुस्तकिम मिजाजी, डटे रहना। ठीक है जी। सबर क्या जी? नेकी पर सबर करना, गुनाहों से बचने पर सबर करना, मुश्किलात का सामना करने पे सबर करना। ठीक है। चलें, सिर्फ ईमान लाना और अमले साले करना काफी नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमने क्या करना? तवासो बिल हक और तवासो बिल सबर भी जरूरी है। गलत सबर के अल्लाह ताला का वली वो है जो किसी के लेने में है और ना देने में है। ऐसा नहीं, इज्तमाइयत का तसव्वुर। ठीक है। एक आम सूरत तवासो बिल हक की, अपने साथी को चुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद लाइए, हिम्मत बढ़ाइए और सब्र की फजीलत बताइए। इस क्लास के जरिए खास और कामल तवासो बिल हक का काम होता है। अगले कई महीनों तक हर दूसरे दिन अपने भाई से, सिस्टर से प्यारे। जी। यहाँ पे अभी मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा, वाओ। वाओ कहा गया। वाओ का मतलब क्या है जी? और। आओ, ये इंशाल्लाह कभी आगे जाकर मजीद इसकी तफसील पढ़ेंगे। आओ का मतलब होता है या। जब हम किसी जमाने में पेपर किया करते थे तो सवाल लिखा होता था, दरमियान में क्या होता था? या। फिर सवाल होता था। उसका मतलब होता था या आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात और कहा गया है, यानी कि बात की गई, फिर वाव आई, फिर बात की गई, फिर वाव, फिर बात की गई, फिर वाव, फिर बात की गई। यानी कि 4 दफा ये कहा गया तो 3 दफा वाव आया है। ठीक है। पहले बात हुई, उसके साथ और, फिर बात हुई, फिर और, फिर बात हुई, फिर और, यानी कि 3 दफा वाव। तो कितनी टोटल? 4 बातें। कौन सी है देखते हैं। जिस बंदे में से 4 सिफात बैक वक्त पाई जाएंगी वो खसारे से बचा रहेगा। यहां पर अल्लाह ने 3 जगह पर वाव का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब और है, और होता है, यानी खसारा से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाव की जगह पे क्या लेकर आते? आओ लेकर आते। वाव की जगह आओ फरमाते, यानी ये या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, या ये कर लो, इन चारों में से कोई ये कर लेते नहीं, चारों की चारें करना जरूरी है। जी, तसव्वुर सास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। वतवासो बिल हक की, वतवासो बिल, और एक दूसरे को वसीयत की हक की, और एक दूसरे को वसीयत की सबर की। पहली वसीयत किसकी है? हक। दूसरी किसकी है? सबर। हाँ जी। मिसेस नईम अहमद जी, मेरी बहन। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की बिल हक, हक की। वतवासो और एक दूसरे को वसीयत की बिसब्र, सब्र की। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर नाइमा खान। वतवासव और एक दूसरे को वसीयत की बिल हक की। वतवासव और एक दूसरे को वसीयत की बिसब्र, सब्र की। जजाकल्ला जी। इमरान मलक साहब जी ब्रदर। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तवासो, और एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक के, हक की। व तवासो और एक दूसरे को वसीयत की, बिस सब्र, सब्र की। जी सिस्टर इमामा सगीर। इमामा सगीर नहीं पढ़ना। वतवासव और एक दूसरे को वसीयत की बिल हक
हक की व तवासौ और एक दूसरे को वसीयत की बेसब्री सबर की। ठीक हो गया जी ब्रदर वकार अजीम। रहीम वतवासौ और एक दूसरे को वसीयत की हक की वतवासौ और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे सिस्टर थी नीला, उन्होंने डाउन कर लिया है हैंड। जी सिस्टर नीला खान। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। जरा नेट का इशू है, बीच में स्क्रीन गायब हो जाती है तो इस वजह से। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतवासौ बिलहक की वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को वसीयत की हक की और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। जज़ाकल्लाह। सिस्टर कुछ समझ आ रही है आपको? कोई सर मुश्किल तो नहीं समझ पेश आ आ रही? रही है। नहीं सर मुश्किल नहीं पेश है। लास्ट टाइम सर मैं क्लास नहीं ले सकी, आई एम सॉरी, क्योंकि हम लोगों का मातम हो गया था तो इसलिए मैं फिर मौजूद नहीं थी घर में ना। क्या नहीं, वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और पिछली रिकॉर्डिंग भी सुनकर आप पिछले होमवर्क वगैरह और वर्क बुक पे खुसूसी तवज्जो दें। कोर्स हमारा इख्तिताम की तरफ है। ठीक है सिस्टर? ठीक है सर। हाँ जज़ाकल्लाह जी। जी जरा वतवासो जरा चैट बॉक्स में लिखिए। और उन सबने वसीयत तलकीन की एक दूसरे को। जी सबर की क्या मीनिंग है? सबर, सबर है जी नेकी करनी है और मुश्किल पर सबर करना है, मुश्किलात पर भी सबर करना है, गुनाह से बचने पर भी आपने सबर करना है, और तकलीफ जब पहुंचे तब भी सबर करना है। जी ये चारों ही हैं जी। ईमान को मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे? कुरान और हदीस को समझकर पढ़ेंगे, अल्लाह की मखलूक पर भी गौर करेंगे, सीरत का मुताला करेंगे, अपने दैश और मौत को याद रखेंगे। बिल्कुल यही है जी, सारे जवाब हैं इसके। आल चलें, अब ये देखें जी यहाँ पे, अब पूरे तसव्वुर के साथ हम इसको देखते हैं। वाला सर ये तो कसम वाला है, इन इंसान लाफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु वो वो आमिल सालियात वतवासो बिलहक की वतवासो बिस्सब्र। देखिए 3 दफा वाव आया है, यानी कि ईमान लाना है, नेक अमल करने हैं, एक दूसरे हक की बात और सब्र की तलकीन करनी है। ये 4 काम हम करेंगे तो हम क्या होंगे? खसारे से बच जाएंगे। ठीक है जी, समझ आ गई? वंस अगेन मैं आपको बता दूं, ये वाव है, एक वाव, मैंने 3 वाव की बात की थी, दूसरा वाव, तीसरा वाव। अब वो कह रहे हैं जी इल्लल्लाजीना, वो लोग खसारे से बच जाएंगे सवाए उसके, बाकी सारे के सारे खसारे में, बट इल्ला सवाए अल्लजीना आमन, जो ईमान लाए। पहली बात क्या जी? ईमान। दूसरी बात क्या है? आमिल सालियात, यानी कि नेक अमाल। फिर हमने क्या करना? वतवासो बिल हक, एक दूसरे का हक की यानी कि तुम्हें नसीहत करनी, और आखिरी वतवासो बिस्सब्र। क्लियर जी? तो सूरह असर का खुलासा क्या जी? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला। जी ग्रामर, ग्रामर के अंदर हम फेल मुदारे ग्रामर हम करते हैं टीपीआई के साथ। जी अभी हाँ असलम हैं तो वो रिवाइज कर दें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक हो गया जी। तो इसम कलमे की 3 किस्में हैं। कलमा या अल्फाज, इसम फेल हर्फ। इसम क्या जी? किसी का नाम, किताब, मक्का या माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से, और अब तो आपको इसकी समझ आना शुरू होगी। हरफ प्रेपोजिशन, जो 2 इसमें या फेलों को मिलाता है। फेल क्या है? जिसमें किसी के काम के करने या होने का पता चलता है, इसमें जमाना भी पाया जाता है। वर्ब, हम 3 हरूफ से वर्ब को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फेल के आगे फिर 3 किस्में हैं। फेल माजी, जो हो गया, जो कंप्लीट हो गया। फेल मुदारे, जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा या होगा। और आगे अमर, इंशाल्लाह हम आगे जाकर पढ़ेंगे। आज हम मुदारे कंप्लीट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम अमर। फाला से हमने कहा था यफलू, फालू से कहा था यफलूना, फालत तफलू, फालतू अफलू, फालतुम तफलून, ऊपर इशारा ले, फालना इधर आ जाए तब नफलू। ये जी पिछले इसबाक से मैं इसको जल्दी से गुजारता हूं ताकि आप इसको अगर वीडियो देखें तो इसको देख सकें। माँ फाल तुम, माँ का मतलब आप सब नहीं, आप सब नहीं करते। जी वला अना आबिदुन,
اور نہ میں عبادت کرنے والا، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو تب بھی آ جائے گا۔ وقد، قد کا مطلب تحقیق، خلق تو اپنی طرف آ جائے گا، اور تحقیق میں نے پیدا کیا۔ آج کے سبق میں ہم مضارع ہی کی پریکٹس کریں گے، یدربو، یسمو، یعلم۔ اب آپ کو یہ چاروں سٹائل، چاروں باب دکھائیں گے تو آپ کو اس کا ڈفرنس سمجھ آ جائے گا۔ یہ ہے جی، پہلا ہم نے فتح سے کیا، پھر نصرہ، پھر ضربہ، پھر سامع۔ ان کے اندر آپ دیکھیں تو ساروں کے اوپر زبر ہے جی، ہر ایک کے اوپر زبر 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 زبر، فتح، نصرہ، ضربہ، کچھ فرق نہیں ہے تینوں میں ماضی میں۔ اب فتح سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ یفتح، یہاں پہ زبر۔ ناصرہ سے ہم نے بنایا ینصرو، یہاں پہ پیش۔ ضربہ سے ہم بنائیں گے ید ریبو، ریبو، تینوں میں فرق۔ اب سامعہ میں یہاں پہ پہلے ہی زیر ہے تو سامعہ سے بنتا ہے یسمعو، یہ والا اور یہ سیم ہو جاتے ہیں، لیکن بٹ ماضی کے اندر اس کو پہچان کریں گے، اس میں زبر ہے، اس میں زیر ہے۔ جب ہم آگے پہچان سٹارٹ کریں گے تو اس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اچھا سامعہ ہے تو سامعہ کے اندر تو پہلے ہی زیر ہے تو یہ تو باب سامعہ پہ چلا گیا۔ یہ جی یہ فرق ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ہم اس کا ضربہ سے یدریبو اب مضارع بنائیں گے۔ یدریبو مارتا ہے یا مارے گا؟ یدریبون وہ سب مارتے ہیں ماریں گے، تدریبو آپ مارتے ہیں ماریں گے، ادریبو میں مارتا ہوں یا ماروں گا، تدریبون آپ سب مارتے ہیں ماریں گے، ندریبو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے۔ جی پہلے تین لوگوں سے کرواتے ہیں۔ ابیہا اسلم، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ جی نویدہ اختر، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، یضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ جیسے یہ والا آپ نے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، اس کو پڑھے دوبارہ۔ تضربو سر، تضربو تدریب، آپ نے کچھ اور پڑھا تھا، آپ اچھا نے سر یدریبو ہی کہا تھا، دیکھیے کیسے ہوگی۔ جی صویبہ ٹھیک ہے۔ مشتاق، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ سسٹر نصرت یاسمین سوال کریں گی اور سسٹر شاداب ظفر جواب دیں گی۔ هل يضربو لا يضربو، هل يضربون لا يضربون، هل تضربو لا أضرب، هل تضربون لا نضرب۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر مسن ندیم سوال کریں گی اور مسن نعیم کہاں چلے گی؟ نہیں ہے، چلیں امیمہ آپ جواب دیں گی، مسن ندیم سوال کریں گی۔ حامد ان سے حامدن، جی حل یدریبو حامدن، جی سسٹر مسن ندیم هل سوال يضرب کریں۔ حامدا لا يضرب حامدا، يضرب حامدا لا يضربون حامدا، هل تضرب حامدا لا أضرب حامدا، هل تضربون حامدا لا نضرب حامدا۔ جزاک اللہ۔ چلیں چیٹ باکس میں باقی لوگ دیں۔ وَيَضْرِبُ کیا جواب ہوگا؟ دو جواب ہوں گے، وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا۔ اوکے چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ضربہ کا ہو گیا، اب ہم پڑھیں گے سامعہ۔ سامعہ سے یسمو اسما، یہ آگے امر ہے، انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، چار نمونے ہو گئے۔ سامعہ سے بنے گا یسمو وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سب سنتے ہیں سنیں گے، تسمع آپ سنتے ہیں سنیں گے، اسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا، تسمعون آپ سب سنتے ہیں سنیں گے، نسمع ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے۔ جی وقار عظیم،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सब सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माउ आप सुनते हैं या सुनेंगे, अस्माउ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माउ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। इरम फातिमा। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस्माऊ वो सुनता यस्माऊ वो सुनता है या सुनेगा, यस्माऊना वो सुनते हैं या सुनेंगे, तस्माऊ आप सुनते हैं या सुनेंगे, इस्माऊ मैं सुनता हूँ या सुनूंगा, तस्माऊना आप सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माऊ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे। ठीक हो गया, ये बेटा अस्मा हुआ, अस्माहु, ठीक है। जी। चलें, ठीक हो गया जी। आगे है जी, हम सवाल करेंगे, एक नया वर्ड आ गया, माजा। माजा का मतलब भी क्या होता है, माजा का मतलब भी क्या होता है जी। ब्रदर ताहिर सवाल करेंगे, ब्रदर इमरान मलिक जवाब देंगे। माज़ा यस्माउ यस्माउल कुरान, माज़ा यस्माऊना यस्माउन अल कुरान, माज़ा तस्माउ अस्माउल कुरान, माज़ा तस्माऊना। नस्माउल कुरान। चलें, जजाकल्ला जी। आगे जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, ला यस्माऊना का क्या मीनिंग्स होंगे। नाइमा खान ये कह रही है, ये जवाब नहीं है। बिल्कुल ये है, सॉरी सॉरी, वो सब नहीं सुनते, ठीक है। चलने जी, दो हो सकते हैं, ठीक। माजा यस्मो जवाब देना है, यस्माउल कुरान। चलें जी, अगला करते हैं। सामिया के टेबल पर यह है, सामिया के टेबल पर बनेगा या आलमू। आलिमा जो हमने पढ़ा था, या आलमूना वो जानता है, या आलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, ना आलमू हम सब जानते हैं। उमायमा सगीर, उमायमा सगीर नहीं करना चाह रही। शदाब जफर, यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जी सिस्टर नीला खान। यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह। यहाँ ब्रदर वकार थे, पता नहीं रिवाइज करना चाह रहे थे, नहीं है वकार नहीं सर, अजीम मैं साहब। आगे हूँ, वो नेट नेट चला गया था। जी सर, या अलमू वो जानता है या जानेगा, या अलमूना वो सब जानते हैं या जानेंगे, ता अलमू आप जानते हैं या जानेंगे, आ अलमू मैं जानता हूँ या जानूंगा, ता अलमूना आप सब जानते हैं या जानेंगे, ना अलमू हम सब जानते हैं या जानेंगे। ठीक है जी। जी सिस्टर मैम सगीर करना चाह रही हैं आप? यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। ठीक हो गया जी। जी नाइमा खान, याहलमू वो जानता है, याहलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमू हम सब जानते हैं। ठीक है जी। इरम, यालमु वो जानता है, या यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं। ठीक हो गया जी। चलें, बाकी लोग जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, वतालमूना क्या मीनिंग्स होंगे। जी सी और डी बिल्कुल ठीक है, और आप जानेंगे और वह सब जानते हैं। जी आफला, आफला तो क्या वो नहीं जानते, तो क्या वो सब नहीं जानेंगे।
हल तालमुल कुरान, बिल्कुल सही, ए है जी नाम। क्या आप सब जानते हैं? ठीक है, चलें जी, आखिरी टेबल हमारा आमिला से अभी हमने किया। आमिला से क्या बनेगा? या अमलू। या अमलू वो अमल करता है करेगा, या अमलू ना सब अमल करते हैं करेंगे, ता अमलू आप अमल करते हैं करेंगे, आ अमलू मैं अमल करता हूँ या करूंगा, ता अमलू ना आप सब अमल करते हैं करेंगे, ना अमलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। स्वाइबा मुश्ताक। यामुलु वो अमल या करता अमलू, है, या अमलु वो अमल करता है, या अमलूना वो सब अमल करते हैं, तामलु आप अमल करते हैं, अमलु मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलु हम सब अमल करते हैं। अबीहा असलम। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। इरम। यालमु वो अमल करता है या करेगा, यालमूना वो सब अमल नहीं करते नहीं हैं नहीं, या गलत कर करेंगे। रही, गलत गलत, दोबारा पढ़ें। या यामलु अमलू, या अमलू। यामलु वो अमल करता है या करेंगे, यामलूना वो सब अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, नामलू हम सब अमल करते हैं या करेंगे। ब्रदर ताहिर, बगैर मीनिंग के करें सर, अब टाइम ज्यादा नहीं। यामलू यामलूना तामलू अमलू तामलूना नामलू। वकार, ब्रदर वकार। यअमलू यअमलूना तअमलू अअमलू तअमलूना नअमलू। शदाब जफर। यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। नाइमा खान। यहमलू यहमलूना तहमलू अहमलू तहमलूना नामलू। नवीदा अख्तर। यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलूना नामलू। इमरान मलिक साहब। यामलू यामलूना नामलू आमलू तामलूना नामलू। महमद सगीर। मामा सगीर। चलें, नहीं करना चाह रही जी, चैट बॉक्स में लिखें जी, चैट बॉक्स में लिखें हल तामलू सालिहन, तामलू अपनी तरफ इशारा आ जाएगा, तामलू आमलू, ठीक है जी। हल तामलूना खैरन, तामलू नहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलें, नुक्ता तालीम जी, बड़ा जबरदस्त सा 7वां होमवर्क। तो हमने क्या करना है जी, हमें से कुछ नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पर 2 रकात में नतैना, 2 में कुल हुवल्लाह, ऐसा मत कीजिए। मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खास तौर पर उन सूरतों को पढ़िए जिनके मायने आपको याद हो गई हैं। इसके कई फायदे आपको, तलावत से खुशी जाहिर, आपको समझ आ रही है, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और ज्यादा अजर भी मिलेगा। अल्फाज मायनी जो है उसका अयादा भी होगा, आपका हाफजा स्ट्रांग पुख्ता हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 14, ये 14वां फूल आपके पास। 14 नंबर सबक के इख्तिताम पर हमने 174 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक के अंदर 36,556 बार आए। तो याद रखिए, 5 मुसहफ से 5 हाफजे निकालिए, किताब को पढ़िए, बुक शीट को पढ़िए, लफ्जी तर्जमा, कवायद, अपने साथी से कोर्स की बातें कीजिए, तलावत कीजिए और वीडियो को बार बार देख लीजिए। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिए। दुआ कीजिए, और रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा। तो टीचर बनिए, जो कुछ सीखा है दूसरों को बताइए, इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। अल्लाह से दुआ को हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
चलें जी, हम दोबारा फिर एक दफा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम चलें जी, वरहमतुल्लाहि। ठीक हो गया। मैंने सबके कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के हैंड जो है लोअर कर दूं। अब मुझे वो लोग हाथ हैंड रेज करेंगे जो इसका तर्जमा करना चाह रहे हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, वो इस कोर्स से आपने बताना है। जी सबसे पहले जी नीला खान, जी सिस्टर ने म्यूट करके बताइए। बाकी लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं, तर्जमा करना चाह रहे हैं, रिकॉर्डिंग में बात जाएगी है। जी सिस्टर नीला खान। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सुब सुब इसका करना स्क्रीन पे ये आएगा। अच्छा, सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए हमारे अल्लाह, व बिहम्दिका, तेरी तारीफ के साथ, नशहदु हम गवाही देते हैं, अन ये के ला इलाहा इल्ला नहीं कोई मबूद सिवाय अंता तेरे, नस्तगफिरुका हम बख्शिश तलब करते हैं तुझसे, व नतूबु हम तौबा तलब करते हैं, हम रुजू करते हैं इलैका तेरी तरफ। जी कोई और करना चाह रहे जी? कोई और पढ़ना चाह रहा है? कोई नहीं पढ़ना चाह रहा? जी नवीदा अख्तर, सिस्टर नवीदा। जी सर। सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है अल्लाह, व बिहम्दिका, वा और बी से हमदिका, हम तारीफ का, आपकी, नशहदु हम गवाही देते हैं, अल्लाह 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 तो अल्लाह है ही नहीं यहाँ पे। नशहदु अन का अल्लाह मतलब, इलाहा सर, अच्छा अल्लाह इलाहा कोई माबूद इल्ला सिवाय अंता अंता आपके, नस्तगफिरुका नस्तगफिरुका हम, इसका सर नहीं आता, व नतूबू का भी नहीं आता। नस्तगफिरुका हम आपसे माफी चाहते हैं, व नतूब, और नतूब क्या जी, पलटने वाला, ताबा से है, इलई का और रुजू तेरी। करने वाला। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह आप आगे जी, काफी हैंड रेज हो गए हैं। चलें सिस्टर मिस नदीम, आपसे मैं करवाता हूँ अभी शादाब जफर। देखें जो सुबहानक इस कोर्स में, अल्लाहुम्मा। एक मिनट, अब मैंने तो इतना लंबा तो पढ़ाया ही नहीं कभी। मुझे सुबहाना का मतलब बताएं, ये वर्ड क्या है, इसके टुकड़े बताएं, तब बात बनेगी। जी सिस्टर, सुबहाना का इसके टुकड़े बताएं कितने हैं? सुबहानका के दो, क्या मतलब है सुबहाना का? पाक है। का मतलब क्या होता है? सर है। देखिए ना बेटा, यही तो मसला है। मैंने कहा इस कोर्स के मुताबिक आपने रट्टे लगाए हैं, ठीक है? जो रट्टे वाला है सर वो तू। मुझे नहीं चाहिए। तू का, तू ये सामने वाला का, तू अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हैं? कोई टुकड़ा नहीं है, अल्लाह का कोई टुकड़ा नहीं है। ये बाकी लोग ना बोले जी। आगे वबी हमदी का, इसके कितने टुकड़े हैं? सर चार। कौन कौन से? वा, बी, हमद और का। हाँ, अब वाव का मतलब क्या होता है? और बी का मतलब क्या होता है? से से या साथ, ठीक है। हमद का क्या मतलब होता है? तारीफ। का मतलब क्या होता है? तू। तुम। तो इस तरीके से तर्जमा करें ना, वाबी हमदी का, और सात तारीफ किसके? तेरे। नशहदु, इसका क्या मतलब होगा? अ, हम गवाही देते हैं, ठीक है। नशहदु, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पे जब लेके आते हैं, क्या कहते हैं, कोई भी टेबल आज कौन सा किया हमने, सामया का, ठीक है, नस्मो। जी आगे है जी अन का मतलब क्या है? के के, बिल्कुल ठीक हो गया। ला का मतलब क्या है? नहीं। नहीं। अब आप सही करें,
इलाह का मतलब क्या होता है? معبود कोई और माबूद। मबूद। इल्ला का मतलब क्या होता है? سوائے सवाए या मगर। अंता, تو तू या तेरे, ठीक है। नस्तगफिरु का कितने टुकड़े हैं इसके? دو दो, माशाल्लाह। एक है नस्तगफिरु का और एक का। नस्तगफिरु का मतलब क्या है? مغفرت چاہتے ہیں माफी मांगना। हम, ना आएगा तो हम, ठीक है। हम मगफिरत चाहते हैं का तुझसे, ठीक है। व नतूब, और पलटते हैं اور इलैका। رجوع کرتے ہیں हाँ, रजू करते हैं, पलटते हैं इलैका, तेरी तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तर्जमा करना है। जी ब्रदर ताहिर। जी सर, सर मेरी बात मैं करता हूँ सुनिएगा। सर। जी सर, जी, मैं मेरी सुन लीजिएगा। जी फरमाइए आप सर। तर्जमा कीजिए। इसके अंदर प्लूरल है, जमा के सीगे हैं, हम, ठीक है। आपने जी इसको वाहिद में भी कन्वर्ट करना है। अब अपने लिए सिर्फ दुआ करेंगे, हम सब के लिए नहीं। जी, पहले तर्जमा करते जाएं साथ साथ। जी, सुबहान का, पाक है तू, का आ गया तू, सुबहान आ गया, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वाह और भी हमद का, भी मैंने साथ, हमद तारीफ शुक्र का तेरी, नशहदु नून की वजह से हम गवाही देते हैं, अन तो इसको के। सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जी, इसको सिंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नशहदु का तो अश मतलब हो गया हम। अशहदु अशहदु, बिल्कुल ठीक है। अशहदु ला इलाहा हमने पढ़ा है ना, अशहदु। जी जी ठीक जी है। ये वाला नशहदु ज्यादा वाला, और जी, ये एक वाला, सिंगल वाला, जी एक उंगली वाला। जी, सॉरी। जी आगे। अन के, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला सवाए, अंता तेरे, नस्तगफिर हम बख्शिश चाहते हैं, इसको का सिंगल में करेंगे? अस्तगफिर अस्तगफिर का, बिल्कुल ठीक है जी। का तेरे या तुझसे, वा और नतूबु हम रुजू करते हैं, इलई तरफ का तेरी, इसको सिंगल में कैसे करेंगे नतूब को? अतूब। नतूब, माशाल्लाह जी। ये असल में है, हमने इस कोर्स में कोई ऐसा एक हर्फ भी नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपने इस कोर्स के अंदर जिस तरीके से पढ़ा है तो उस तरीके से चलेंगे तो कुरान पाक आपके लिए आसान हो जाए। अगर आपने रट्टा लगा लिया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। बहरहाल, मैं एक दो दुआ करता हूँ, फिर क्लोज करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह से, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू।